زندہ باد زندہ باد۔ پاکستان مسلم لیگ نون یو ایس اے کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی شاندار تقریب کا اہتمام لٹل پاکستان بروکلن میں کیا گیا۔ تقریب کا آغاز چودھری پرویز نے تلاوت کلام پاک سے کیا، ماں کی یاد میں اشعار پڑھے اور نعت رسول مقبول پیش کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ نَذِيرُكَ فِي نَذَرٍ مِثْلِكَ تَنَاشُدُ پیدا جانا جگراج کو تاج تیرے سر سو ہے، جگراج کو تاج تیرے سر سو ہے، تجھ کو تو شہید و سرا جانا ماورگی کوئی شے نہ جگ تے میں ساری دنیا پھولی۔ نوجوان مسلم لیگی رہنما نادر بٹ نے بھی نہایت عمدہ انداز میں نعت شریف سنائی اور حاضرین سے داد سمیٹی۔ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، تو اگر نہ ہوتا اگر نہ ہوتا، دنیا تھی حالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ نظامت کے فرائض جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون یو ایس اے رانا سعید نے ادا کیے۔ بہنوں بھائیوں السلام علیکم۔ یوم تکبیر کے سلسلے میں
منعقدہ اس تقریب میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون USA کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہر سال ہمیشہ کی طرح یوم تکبیر بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتی چلی آ رہی ہے۔ آج کی یہ تقریب پاکستان مسلم لیگ نون USA کے صدر جناب محترم روہیل ڈار صاحب کے زیر صدارت منعقد کی گئی ہے، اور آج کی تقریب کے کی نوٹ اسپیکر سابق سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے فعال اور دلیر لیڈر جناب محترم نہال ہاشمی صاحب کراچی سے براہ راست خطاب کریں گے۔ دانش ملک، تاج خان، راجہ شفقت علی ذمہ واریہ، کرنل مقبول ملک، صدر نیو یارک اسٹیٹ احمد جان، صدر مسلم لیگ نون USA روہیل ڈار نے یوم تکبیر کے موقع کی مناسبت سے مدلل گفتگو کی۔ جناب رانا سعید صاحب اور میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ پاکستانی قوم آج ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ایٹمی قوت بننے کی سالگرہ بڑے جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ آج یوم تکبیر کے موقع پر پاکستان کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ملک کی دفاع کے حوالے سے یوم تکبیر کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ میں 28 مئی 1998 کو 5 بھارتی ایٹمی دھماکوں کے بدلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ہمارے پاکستان کو ہمارے قائد نے مسلم امہ کی فرسٹ ایٹمی قوت بنا ڈالا۔ اس مرد مجاہد نے اپنی پاکستانی قوم کی آواز سنی اور 5 ایٹمی دھماکوں کے بدلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر دیے۔ پاکستان کا ایٹمی قوت بننا ہمارے لیے قدرت کا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا عظیم تحفہ ہے۔ اس میں ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جنہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ آج یوم تکبیر کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک انتہائی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ایٹمی دھماکے ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی قوم کی بحیثیت قوم اور تمام لیڈرشپ جس میں تمام تب اختلافات کے باوجود فوجی قیادت سے بھی جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ان کے ساتھ بھی اور سیاسی قیادت سب نے مل کے اس میں کنٹریبیوشن کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمیں اس معاملے میں بخیل نہیں ہونا چاہیے، اور سب کے جو خدمات ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 1900 کیونکہ میں خود اٹامک انرجی کمیشن سے منسلک رہا ہوں، شاید دوستوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا، تو میں نے جب انجینئرنگ کی فارغ ہوا تو میری جو ملازمت تھی وہ اٹامک انرجی کمیشن میں تھی، تو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اس پورے پروسیس کو۔ 1968 میں بیسکلی اٹامک انرجی کمیشن کا قیام آیا، اور وہ بھی اس لیے قیام عمل میں آیا کہ 1966-67 میں ہندوستان نے پہلے نیشنل کمیشن کا انہوں نے اس کو انفورس کیا، بلکہ ہندوستان نے 1968 میں پہلی مرتبہ ایک سافٹ ڈیٹونیشن کیا، جس سے فزکس کے سائنس کے اعتبار سے سافٹ ڈیٹونیشن کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، مہمان خصوصی، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں،
अस्सलामु अलैकुम। मेरा तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि तकबीर और फिर नारा लगेगा तो फिर आपने जवाब भी देना है। नारा तकबीर। और फिर उस शख्स का नाम लूंगा, मैं उस शख्स का नाम लूंगा जिस वक्त मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के मुताल्लिक सोचना शुरू किया तो पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई। आज हमारे लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए ही नहीं, आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अजीम दिन है। इस दिन को हमारी तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। आज जो फैसला हमारे कायद जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1998 को लिया, वो फैसला कई सदियां हमारे लिए एक मशअल राह होगा और वो एक फ़ैसला, एक बेहतरीन फ़ैसला होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान की सारी जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल गई। हिंदुस्तान के दांत परमानेंटली खट्टे हो गए। बाकी जो पाकिस्तान के दुश्मन, जो वाज़े दुश्मन थे या जो छुपे हुए दुश्मन थे, आज के दिन उनके तमाम अज़ाइम खाक में मिल गए। वो अज़ाइम जो कि पाकिस्तान को अंडू करने के अज़ाइम थे, वो हमारे कायद के उस फैसले के साथ मुकम्मल तौर पर बदल गए। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दुश्मन को जो जवाब 6 धमाके करके दिया, वो आज तक दुश्मन की आंख में धड़कता है। इसके साथ ही जो मौजूदा हालात हैं उसको भी डिस्कस किया जाए तो वो भी देखें कि हमारे मुल्क में एक फितना जो 6 दिन का कह के ही भाग गया, तो अब आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो 6 दिन कभी दोबारा नहीं आएंगे। हम सब दोस्तों को, जितने बहन भाई हम ओवरसीज में रहते हैं, हम सबको पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी चाहिए। सियासी पार्टियां बिल्कुल होती हैं, हर इंसान का तल्लुक किसी ना किसी सियासी पार्टी से होता है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान, जो हालात पिछले 4 सालों में इस फितने इमरान न्याजी ने पैदा किए, वो आप सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेहनत से आज पाकिस्तान फिर एक बार दोबारा उसी जगह पर आके खड़ा हुआ जहाँ पे तरक्की का सफ़र रुका था। तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बिलखसूस मैं अपने बड़े भाई राना सईद साहब को आज योम तकबीर के हवाले से और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो PMLN की सारी टीम और जितने आप मेंबरान इधर भाई बैठे हैं, उन तमाम को मेरी तरफ से योम तकबीर के हवाले से बहुत बहुत मुबारक। तो मैं आपका टाइम नहीं इतना ज़ाया करूँगा, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगेन राना साहब का शुक्रिया और इनकी टीम का कि इन्होंने सबको इकट्ठा किया और माशाल्लाह इतनी अच्छी गैदरिंग पाकिस्तान के हवाले से की। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम यहाँ योम तकबीर मना रहे हैं और योम तकबीर जो पाकिस्तान की वफा का दिन है, उसके बाद जो पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए, भारत के 5 एटमी धमाकों पर, और ये क्रेडिट सिर्फ जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। तो ये हमें ये दिन जो है ना, ये खाली मुस्लिम लीग नून को नहीं, पूरे पाकिस्तान को, हर सियासी और हर जो दूसरे लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है जो जिसकी वजह से, ये दिन की वजह से, जो एटमी धमाके की वजह से किसी की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान को मैली आंख की तरफ करके देख सकें। तो हम सबको चाहिए कि ये दिन पूरे ज़ोर और शोर से मनाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। हाल मियां नवाज शरीफ और नारा तकबीर से गूंजता रहा। लोग नादर भट्ट और भट्ट साहब को माहौल गरमाने पर खूब ज़ोर से जवाब देते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
जिंदाबाद जिंदाबाद। सबक सेनेटर निहाल हाशमी ने पाकिस्तान से बजरिया टेलीफोन खिताब किया कि आपने इस अजीम दिन में हमें याद किया, आपसे मिलने का मौका मिला। मैंने देखा भी जान साहब ने बहुत शानदार से केक बनवाया हुआ है, वो भी मौजूद है। यकीनन बहुत ही लजीज केक होगा। काश हम भी आपके दरमियान होते और हम उससे लुत्फानंदोज होते। मगर उससे ज्यादा मुसर्रत और लज्जत तब होती है जब ये एहसास हमें होता है कि एक पाकिस्तानी कौम आज साइंस में, उलूम में अपने बुलंदियों को छू रही है, और जिसकी जिंदा मिसाल आप लोग हैं कि वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट में मौजूद हैं और अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। आज के इस दिन बहुत अजीम है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो हकीकी खुशी हमें 14 अगस्त के बाद, अगर कोई दिन हमें सबसे ज्यादा बावकार, शानदार, पुरअज़म लगता है वो है 28 में। और ये तवील तारीख है। इस तरह से 14 अगस्त में आपके आबा और अजदाद ने, बरसगीर हिंद के मुसलमानों ने अनथक कोशिश की, जान और माल की कुर्बानी दी। हमारे पाकिस्तानी वो सारे एक तवील तकलीफ और जद्दोजहद के बाद इस मुकाम पे पहुंचे। मगर हर चीज के ऐलान का, हर चीज के वजूद का एहसास दिलाने के लिए भी एक मौका और एक लोग होते हैं। जैसे पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए और 14 अगस्त डिक्लेयर कराने के लिए मुस्लिम लीग और उस वक्त कायद आज़म बाबा कौम हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार था। इसी तरह से 28 मई का 1998, इससे पहले शायद यकीनन बल्कि पाकिस्तान के पास जौहरी कुव्वत थी, मगर वो ईमानी कुव्वत और वो कुव्वत भी थी जिसे कहते हैं हुब्बुल वतनी की कुव्वत। वो कुव्वत जो पाकिस्तान को कुछ कर जाने की जिगर होना चाहिए, दिलो दिमाग होना चाहिए। वो कुव्वत जो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, मगरिब के ऑफर को ठुकरा दे, धमकियों को ठुकरा दे, जो कहे एब्सोल्युटली नॉट, वो जो कहे ताहिर लौहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। जो अपनी तकरीर में कहे कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं कि अपने घोड़े हमेशा तैयार रखो, वो जिगरा पाकिस्तान के कायद, आपके और मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का। ये मोहम्मद नवाज शरीफ का कमाल था कि उन्होंने दुनिया को खातिर में नहीं लाया। उन्होंने कहा नहीं, खातिर में लाना है तो पाकिस्तान को लाना है, मजबूत करना है तो पाकिस्तान को करना है, इज्जत देनी है तो पाकिस्तानियों को देनी है। आखिर में खूबसूरत केक काटा गया। नासिर भट्ट के बच्चों ने मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए तो माहौल जज्बाती हो गया। मज़ेदार खानों से मेहमानों की तवाज़िया की गई। राना सईद ने हाज़रीन का नाम बनाम शुक्रिया अदा किया और नए आने वाले साथियों को खुश आमदीद कहा। ख़वातीन और हज़रात की एक कसीर तादाद ने मुस्लिम लीग नून USA को ज्वाइन किया है। बला शुबा ये सब ऑलरेडी मुस्लिम लीगी हैं, लेकिन आज ये PMLN USA को ज्वाइन कर रहे हैं और इनकी ताकत को इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। आप सब की भरपूर तालियों में मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही सदर साहब के साथ मशावरत करके इनके ओहदों का भी ऐलान करेंगे। इनमें सरफरज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और अजीज राजा नज़ाकत साहब, दानिश मलिक साहब, चौधरी रुखसार साहब, राजा इम्तियाज़ साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब, उमर खान साहब, कर्नल मकबूल साहब, उमर हैयान साहब, कैप्टन रुबीना, मलिक जमील साहब, चौधरी तनवीर साहब, सैयद असद हुसैन बहारी साहब, उमरुद्दीन साहब,
फैसल शाह साहब, नाइला रानी साहिबा, अब्दुल्ला भट्ट साहब, मोहम्मद चौधरी साहब, मोहम्मद यासीन साहब, राना उमर रियाज दराज साहब, नासिर भट्ट साहब, मोहम्मद इमरान यासीन साहब। ये नादर साहब ने लिस्ट दी है, आई डोंट नो, मैं जैसे लिस्ट है मैं उसी तरह करता जा रहा हूँ। हदायतुर रहमान साहब, मलिक अरशाद अहमद साहब, जुनेद खान तनोली साहब, चौधरी मोहम्मद फवाद साहब, हमजा हमीद साहब, दानिश मलिक साहब, चौधरी तनवीर साहब, हमीद चौधरी हामिद साहब, राजा राउत साहब, अब्बास अली साहब, मलिक जमील साहब, अयान साहब, लिखे मूसा से बड़े खुदा, दो नाम रह गए हैं, और नाजिर भट्ट साहब, अयान साहब, अलियान साहब। थैंक यू वेरी मच। आप सबका इंतहाई मशहूर हूँ कि आप सब तशरीफ लाए। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न्यूयॉर्क के सदर जनाब मोहतरम अहमद जान साहब को, तो तशरीफ़ लाएँ जो यहाँ पे मौजूद है। मैं फर्जन उनका नाम लूँगा। हमारे बड़ाई साहब तशरीफ़ लाए हैं बड़े अरसे के बाद, और राजा राउत साहब आए हुए हैं, इनके नाम मुझे सिर्फ 2 मिनट दूँगा। मैं चाहता हूँ मैं सबको खुश आमदीद कहूँ। जाहिद साहब बैठे हैं, मेरे भाई दोस्त, जैन शाह साहब, निकाह हुसैन साहब, इशफाक अवान साहब, फैसल अरशद साहब, रशीद साहब, बिल्ला भट्ट साहब, उमर साहब, सैयद अरशद बुखारी साहब, चौधरी यासीन साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया, मियाँ सईद साहब, मोहम्मद सलीम साहब, अब्दुल फारूक साहब, सरदार हबीब साहब, डॉक्टर हमजा साहब, डॉक्टर अली अजहर साहब, मोहम्मद ताज साहब, मोहम्मद रमज़ान साहब, मोहम्मद असलम साहब, मोहम्मद जावेद साहब, मुश्ताक चौधरी साहब, मोहम्मद रियाज चौधरी साहब, मलिक अलियास साहब, नज़ाकत अली साहब, राजा आज़ाद गुल साहब, फैसल मिर्ज़ा साहब, शेर खान साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब,